Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. So now today we will start revision of lesson number 4, Geometry and Patterns. Already we had done our revision, then also I will today teach you lesson number 4, Geometry and Patterns. So all of you open your textbook. So now all of you look at here what you had learned in this lesson. We had learned first recall plane figure. So which plane figure we had learned? Rectangle, square, triangle, oval. So rectangle have a 4 side, 4 corner. Rectangle have a 4 side, 4 corner. And opposite side of the rectangle are the equal. Opposite side of the rectangle is the equal. Then square have a 4 side and 4 corner and all side are the equal. All side are the equal. Now look at here in the rectangle and square. Rectangle opposite side are the equal, but in the square all side are the equal. This is the difference between the rectangle and square. Since the opposite side of the square is equal, it is the also rectangle, but rectangle is not a square. Rectangle is not a square because rectangle opposite direction only equal, but in the square all side are the equal. Then triangle have a 3 side and 3 corner. Triangle have a 3 side and 3 corner. That x, y, z, that triangle x, y, z and xz, that 3 side and 3 corner, which x, y, z they have that 3 corner. Then circle have a 1 curve side. Circle not have a any corner. Circle have a 1 curve side. Circle not have a any corner. Then same is the oval. Oval also 1 curve side. Oval not have a any corner. So this is our plane figure. Then after we had learned the exercise. In the exercise we had learned now this is the some figures. That figures we are giving the name: rectangle, square, circle, triangles, rectangle, square and oval that have a circle name. Then after we had learned the how many sides corner following have. Square have a 4 side and 4 corner. Rectangle have a 4 side, 4 corner. Triangle have a 3 side, 3 corner. Circle have a 1 curve side and 0 corner. Then after we had learned that question number C, D, E and F. In the question number C, which is the following has the minimum numbers of side? किसको minimum numbers of side maximum numbers of side रहते हैं? सर्कल, स्क्वायर या ट्रायंगल? स्क्वायर को मैक्सिमम नंबर्स ऑफ साइड रहती है. Then which is the following does not have a straight side? किसको straight side नहीं रहती है? सर्कल को. Which of the following has not a corner? ओवल को corner नहीं होता है. ठीक है. फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए थे, उनको कौन से फेसेस रहते. जैसे फेस ऑफ द सर्कल कैसा रहेगा? फेस ऑफ द सन सर्कल में. द ब्लैक बोर्ड इन द क्लास का ब्लैक बोर्ड कैसा रहता है? रेक्टेंगल. द टॉप ऑफ द टीचर टेबल इन योर क्लास, जो हमारे टीचर का टॉप रहता है टेबल का, वो कैसा रहता है? रेक्टेंगल. द पेज ऑफ द बुक, जो हमारा बुक है उसका पेज, रेक्टेंगल. टॉप ऑफ योर पेंसिल बॉक्स का टॉप कैसा रहता है? रेक्टेंगल. व्हील ऑफ द बाइसिकल का व्हील, सर्कल. सरफेस ऑफ द सरफेस कैसा रहता है? सैंडविच का, ट्रायंगल रहता है. देन आफ्टर वी हैड लर्न द फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर इन द सॉलिड शेप. सो विच इज सॉलिड शेप? नाउ लुक एट हियर. क्यूबॉइड, then sphere, cylinder and cone. So now look at here. क्यूब एंड क्यूबॉइड हैव अ फ्लैट फेस. जो हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड होता है उसको फ्लैट फेस रहता है. दे नॉट हैव अ कर्व फेस, उसको कर्व फेस नहीं रहता है. देन स्पीयर हैव अ ओनली कर्व फेस, दे नॉट हैव अ फ्लैट फेस. देन सिलेंडर एंड कोन बोथ हैव अ कर्व एंड स्पीयर, कर्व एंड अ
कर्व एंड अ फ्लैट फेस। जो हमारा सिलेंडर और क्या रहता है, कोन रहता है, उसको दोनों भी फेस रहते हैं, फ्लैट एंड कर्व फेस दोनों भी रहते हैं। देन एजेस एंड द एजेस वेयर द टू फेस आर मीट। इस एजेस किसको बोलते हैं, टू फेस क्या होते हैं, मीट होते हैं एक जगह पे, तब क्या फॉर्म होता है, एजेस फॉर्म होता है। और क्यूब हैव अ स्ट्रेट एजेस, जो हमारा क्यूब है उसको स्ट्रेट एजेस होते हैं। और क्यूबॉइड आल्सो हैव अ स्ट्रेट एजेस, जो हमारे क्यूबॉइड है उसको भी स्ट्रेट एजेस रहते हैं। सिलेंडर हैव अ कर्व एजेस एंड कोन आल्सो हैव अ कर्व एजेस, सिलेंडर और कोन को कर्व एजेस रहते हैं। देन कॉर्नर, अ कॉर्नर इज अ वेयर द थ्री एजेस आर मीट। कॉर्नर कब फॉर्म होता है, अगर थ्री एजेस एक जगह पे मिलते हैं तो कॉर्नर फॉर्म होता है। क्यूब एंड क्यूबॉइड हैव अ कॉर्नर। डज हैव अ कोन हैव अ कॉर्नर, यस कोन हैव अ वन कॉर्नर। मेक अ फिगर, यहाँ पे फिगर पे बनाना था। अ स्पीयर डज नॉट हैव अ कॉर्नर। डज अ सिलेंडर हैव अ कॉर्नर, नो स्पीयर एंड सिलेंडर दोनों को भी कॉर्नर नहीं रहता है। सो दिस is the faces, edges and corner in the solid shapes. Then after we had learned the exercise 4.1 फुटबॉल। फुटबॉल को कैसा स्पेस रहता है, कर्व फेस रहता है। देन टॉय इंजन हैज अ टॉय इंजन है, उसको कौन सा है, कर्व और फ्लैट फेस है। बुक को प्लेन एंड स्ट्रेट। रोलिंग पिन को स्क्वायर एंड कर्व फेस होता है। देन आफ्टर वी हैड लर्न द फिलिंग द ब्लैंक्स, कुछ यहाँ पे सेंटेंस लिखा था, उसके हमें नाम लिखना था। देन नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड शेप। सो विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड शेप, नाउ फर्स्ट इज द क्यूब। क्यूब हैव अ 6 फेस 12 एजेस एंड 6 कॉर्नर। क्या रहते हैं, 6 फेस रहते हैं, 12 एजेस रहते हैं, 8 कॉर्नर रहते हैं। सेम क्यूबॉइड को भी 6 फेस 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर रहते हैं। बट क्यूब एंड क्यूबॉइड नॉट इक्वल। क्यूब इज अ लुक लाइक अ स्क्वायर। जो क्यूब होते हैं उसको सभी फेस हमारे क्या रहते हैं, स्क्वायर रहते हैं, और हमारे क्यूबॉइड के जितने भी फेस रहते हैं वो कैसे रहते हैं, रेक्टेंगल रहते हैं। So, but both have a 6 faces, 12 edges and 8 corner. Then cylinder. Cylinder have a 3 faces. 2 is the plane and 1 is the curve. So, how many edges does have a? They have a 2 edges. Then corner. A corner has a plane surface and curve face. कॉर्नर को एक प्लेन और क्या रहता है, कर्व फेस रहता है। इट हैज़ ओनली 1 एजेस एंड 1 कॉर्नर। इट हैज़ 1 एजेस एंड 1 कॉर्नर। देन स्पीयर, दिस इज लुक लाइक अ बॉल, इट इज कॉल्ड अ स्पीयर। स्पीयर नॉट हैव एनी एजेस, नॉट हैव एनी कर्व, नॉट हैव एनी कॉर्नर, इट हैव ओनली 1 कर्व फेस। उसको क्या रहता है, ओनली 1 कर्व फेस रहता है। सो दिस इज अवर property of the solid shape. Then after we had learned the exercise 4.2. so in the 4.2 कुछ हमारे यहाँ पे क्या थे, पिक्चर दिए थे, उनको हमें क्या देना था, नाम देना था, वो कौन से शेप के हैं। Then after we had learned the tick the correct shapes, करेक्ट शेप को टिक करना था। देन हमें कॉर्नर, एजेस एंड कौन से फेसेस है वो लिखना था। देन नेक्स्ट इज द सिंपल ज्योमेट्री। इन दिस टॉपिक वी हैड लर्न द, नाउ लुक एट हियर, 1 पॉइंट। Point is made by a sharp pencil and it is denoted by a capital letter. Point not have any length, breadth and thickness. Then line. Line not have a beginning point and ending point. Line have a endless and beginningless. Now look at here AB that have a 1 point and the line. लाइन को बिगनिंग पॉइंट भी नहीं रहती, एंडिंग पॉइंट भी नहीं रहते, वो एंडलेस और बिगनिंगलेस रहता है, ठीक है। दैट 2 एरो इज शो अ लाइन is moving from a direction. Then this is the sign of the line and how to read line AB. Then next is the line segment. What is the line segment? A parts of line is the line segment. The line segment denoted by, this is the sign of the line XY. Line segment have a beginning point and ending point.
line segment have a beginning point and ending point from the two side. Now look at here, this is the book को बिगनिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट है, ये यहाँ से कहीं पे बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट बोलेंगे। लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, टू पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। दिस इज द साइन ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड हाउ टू रीड लाइन सेगमेंट एक्स वाई। देन नेक्स्ट इज द रे। रे हैव अ बिगनिंग पॉइंट बट नॉट हैव अ एंडिंग पॉइंट। रे का बिगनिंग पॉइंट रहता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं रहता है, वो स्टार्ट होता है वन पॉइंट से लेकिन वो कहीं भी जाता है, उसको नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। दिस इज द साइन ऑफ द रे एंड दिस इज रे एक्स वाई। Then when the two line segment meet they point at a point, they figure segment AB and PQ meet at the point. This is called intersecting lines. MN and XY that meet at the point O means this is intersecting lines, and this is the line segment. Line segment AB and PQ that meet at the point R, so they are also form line segment intersecting line segment. So this is our geometric concept. Then after we had learned the name the each figure, write in the symbol. हमें यहाँ पे सिम्बॉल देना था और लाइन को नाम देना था। Then after we had learned the measuring the line segment. How to measuring the line segment? By using the ruler we are measuring the line segment, and by using the ruler we are draw the line segment. Then line segment draw. How to draw? By using the ruler we had draw the line segment. Then after we had learned the pattern. So now look at here. Pattern is making the thing is the beautiful. So you learn previous class repeating shades make a patterns, make a things look beautiful. You can see a separate patterns on the cloth and tile patterns on the floor. You can also see the patterns of the animal and the way leaves and flower are arranging in the plants. क्या होता है, जो हमारा पैटर्न बनता है उससे हमारे कोई भी क्या है थिंग्स है वो कैसे बनती है, ब्यूटीफुल बनती है। जैसे हमारे घर में बेडशीट रहती है, टाइल्स रहती है, कर्टन रहते हैं, उसमें क्या रहती है, एक डिज़ाइन होती है, और डिज़ाइन के वजह से वो जो थिंग्स होती है वो कैसे दिखती है, वो ब्यूटीफुल जैसे दिखती है। जैसे फ्लावर होती है, पत्ते होते हैं, देन एनिमल, उनके ऊपर जो पैटर्न बना रहता है उसके वजह से वो कैसे दिखते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं। Then after we had learned the by using the different shapes, colors and size by combing two or more these, हमने क्या किया था, कुछ यहाँ पे डायग्राम है वहाँ पे क्या हुआ है, पैटर्न फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया है, पैटर्न फॉर्म हो गया। So then after we had learned the exercise 4.6. In the 4.6 we had learned draw the next two shape in the each. हमें next shape क्या करना था, ड्रॉ करना था और उसको कलर फिल करना था। Then next we had learned the write the next 3 numbers in each number patterns. हमें यहाँ पे कुछ नंबर दिए थे तो उसके हमें पैटर्न्स फॉर्म करना था। तो फर्स्ट में देखो क्या है, 4 6 8 4 6 8 सबके डिस्टेंस कितना है, 2 का है, मतलब 2 4 6 8 10 12, यहाँ पे 2 का टेबल आ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 2 में 10 20 30 20 30, देन क्या आएगा 40 50 60, यहाँ पे 10 का टेबल फॉर्म हो रहा है। देन 4 3 7 10 4 3 7 10, यहाँ पे देखो 4 और 3 का डिस्टेंस 3 का है, 4 और 7 का 3 का डिस्टेंस है, और 4 और 7 और 10 का डिस्टेंस 3 का है। तो अभी हमें यहाँ पे पैटर्न करना है। सो यहाँ पे 13 और 10 का डिस्टेंस 3 होगा, मतलब 10 में हम 3 मिलाएंगे 13 आ जाएगा, 13 में 3 मिलाएंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में 3 मिलाएंगे तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पैटर्न फॉर्म हो गया। देन नेक्स्ट में 20 17 14, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अगर हम 20 में से 17 को माइनस
20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17 आता है, 17 में से 3 माइनस करेंगे तो 14 आता है, 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आता है। देन नेक्स्ट 5 नंबर में 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, तो यहाँ पे 3 का टेबल आता है। देन नेक्स्ट में 25, 10, 15, यहाँ पे क्या हो रहा है 5, 5 माइनस हो रहा है, 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20 आता है, 20 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आता है, 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20 आता है, 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15 आता है, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 आता है, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आता है, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आता है। तो ये हमने ये पढ़ा था। देन आफ्टर वी हैड लर्न द टाइलिंग अ पैटर्न मेड अ शेप दैट फिट इनटू ईच अदर विदाउट लिविंग अ गैप। जो हमारी टाइलिंग रहती है वो कैसी रहती है, विदाउट गैप लगाते हैं। क्या होते हैं, विदाउट गैप लगाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, एक पैटर्न फॉर्म होता है। क्या होता है, पैटर्न फॉर्म होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए थे। सब फर्स्ट इसमें देखो सिर्फ सिंपल वाले हैं, वहाँ पे क्या है स्क्वायर है। देन सेकंड इसमें क्या है, ट्रायंगल लगाया है सभी इसमें, तो वहाँ पे भी एक पैटर्न फॉर्म हो गया। देन टाइलिंग विथ 6 साइड फिगर, ये है 6 साइड फिगर है वो बना है, तो वहाँ पे भी एक क्या हो गया, शेप फाइंड हो गया है। उसको हम पॉलीगॉन भी बोलते हैं, ठीक है। सो देन यहाँ पे भी हमने टाइलिंग थी और वहाँ पे क्या किए थे, 3 कलर यूज़ किया। यहाँ पे 3 कलर यूज़ किया, यहाँ पे 2 अलग अलग शेप्स यूज़ किए विथ कलर, ट्रायंगल और हमारी जो पॉलीगॉन है 6 साइड वाली फिगर से उसको यूज़ करके यहाँ पे एक टाइलिंग का पैटर्न फॉर्म किया है। देन आफ्टर वी हैड लर्न द एक्सरसाइज 4.7। यहाँ पे हमने क्या किया था, कलर फिल किया था और क्वेश्चन नंबर ए में कलर फिल किया था और क्वेश्चन नंबर बी में हमने कौन से शेप को यूज़ किया है वो किया था। सो दिस इज अवर exercise 4.7. now look at here. Then after we had learned the mathematics A and mathematics B. So what is we had learned in the mathematics A, name the shapes and describe. So now look at here, 2 flat, 1 curve, 2 curve, no edges. इसको क्या बोलेंगे, सिलेंडर। जिसको क्या है, 2 फ्लैट फेस है, 1 कर्व फेस है, 2 फ्लैट फेस है, 1 कर्व फेस है, 2 कर्व एजेस है और उसको कॉर्नर नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं सिलेंडर। व्हाट यू से, सिलेंडर। 3 स्ट्रेट साइड, नो कर्व साइड, 3 कॉर्नर, उसको क्या बोलेंगे, 3 स्ट्रेट साइड है और उसको 3 कॉर्नर्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। अ कर्व फेस, नो फ्लैट फेस, अ कर्व फेस नॉट फ्लैट फेस, एजेस एंड कॉर्नर, उसको एजेस भी नहीं है कॉर्नर भी नहीं है, उसको हम स्पीयर और सर्कल दोनों भी बोल सकते हैं। सर्कल फ्लैट होता है, उसको एजेस नहीं रहते हैं, कॉर्नर नहीं रहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्पीयर। 6 फ्लैट फेस, 12 स्ट्रेट एजेस एंड 8 कॉर्नर, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब एंड क्यूबाइड। क्यूब एंड क्यूबाइड दोनों को ही 6 फ्लैट फेस रहते हैं, 12 स्ट्रेट एजेस रहते हैं और 8 कॉर्नर रहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, नेम द ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। इट हैज़ अ पॉइंट बट नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस। किसको नो ब्रेथ, नो लेंथ एंड नो थिकनेस रहती है, पॉइंट को नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस रहती है। देन क्वेश्चन नंबर बी, इट हैज़ अ बिगनिंग बट नो एंडिंग। इसको बिगनिंग तो रहती है लेकिन एंडिंग नहीं रहती, उसको हम बोलते हैं रे। उसको हम क्या बोलते हैं, रे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इन द क्वेश्चन नंबर 3 वी आर ड्रॉ अ लाइन। यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की लाइन निकालनी थी, 7 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लाइन निकालनी थी कितनी, 10 सेंटीमीटर की लाइन निकालनी थी। देन इन क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिसिंग शेप्स इन कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पे कुछ पैटर्न दिए थे, उसको हमें कंप्लीट करना था। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। देन क्वेश्चन नंबर 6,
पुट अ क्रॉस शेप दैट डज नॉट हैव अ टाइल्स। इसमें से एक शेप को क्रॉस करना है जो हम टाइल्स में यूज़ नहीं करते। तो किसको नहीं करते हैं? सर्कल को हम टाइल्स में यूज़ नहीं करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, मैथमेटिक्स A. Now look at here, mathematics B for a higher skill. So now look at here, question number 1, MCQs. Which plane figure will not draw a sheet of paper to show a X? Which plane figure will you draw on the sheet papers to show a X? अगर हमें एग निकालना है प्लेन पेपर में तो हम कौन सी डायग्राम निकालेंगे? रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल या ट्रायंगल? हम निकालेंगे ओवल। ओवल कौन से शेप का होता है? एग के शेप का रहता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। देन क्वेश्चन नंबर 2, एवरी फेस ऑफ द क्यूब इज ए। क्यूब के एवरी फेस कैसे रहते हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल। एवरी फेस ऑफ द क्यूब इज द स्क्वायर। एवरी फेस ऑफ द क्यूब इज द स्क्वायर। Then question number 3, which solid shape has a 2 plane face and a 1 curve face? ऐसे कौन सी सॉलिड शेप से उसको प्लेन फेस रहते हैं और कर्व फेस रहते हैं? क्यूब, क्यूबाइड, कोन, स्फीयर एंड सिलेंडर। सिलेंडर को प्लेन फेस भी रहते हैं और कर्व फेस भी रहती है। यू हैव अ क्यूबाइड, which of these can you measure यूजिंग द स्केल? हमें अगर क्यूबाइड को ड्रॉ करना है तो हम क्या क्या मेजर करेंगे? लेंथ, हाइट और ब्रीथ तीनों भी मेजर करेंगे। लेंथ, हाइट एंड ब्रीथ तीनों भी हम मेजर करेंगे, ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आता है ऑल ऑफ दिस। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर 5, हाई ऑर्डर थिंग्स। हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू द बोथ द गिवन PQ? PQ में से हम कितने लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं? 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कितने ड्रॉ कर सकते हैं? 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी लाइन्स सेगमेंट कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू अ पॉइंट X? यहाँ पे X पॉइंट है, उसमें से हमने कितने लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं? एज मेनी एज यू। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है X, इसमें से हम कितने भी क्या कर सकते हैं? जितने हमें चाहिए उतने हम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स एट द टाइम्स यू कैन ड्रॉ थ्रू अ पॉइंट ABCD एंड ट्राई इट्स? ABCD ये 4 पॉइंट्स है, उसमें से हम कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो कितने? 6। 1 2 3 4 5 6। कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 6 लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। So this is our lesson number 4 revision. Okay, then one thing that question number फन एक्टिविटी 63, ये मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था। जिस स्टूडेंट ने अभी तक प्रोजेक्ट को सेंड नहीं किया है उनको एग्ज़ाम के पहले मुझे प्रोजेक्ट को सेंड करना है। सो आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड लेसन नंबर 4 ज्योमेट्री। Thank you and have a nice day.